अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। डीजे हल्ली में हुए वाक़ये से आप तमाम हजरात जो है वाकिफ़ हैं। वहाँ से कुछ लोगों को जो है डिटेन किया गया था या अरेस्ट किया गया था। यहाँ पर वकील हजरात की एक जमात मौजूद है जो उनके फेवर में जो केस लड़ रहे हैं। तो आइए मज़ीद तफसीलात इनसे जानते हैं, इनका तारुफ़ जानते हैं, ये टीम कौन सी है, कहाँ से ये लोग जो है उनके लिए केस को आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ा रहे हैं, आइए जानते हैं। Assalamu alaikum. I am Syed Ishtiaq Ahmad, advocate, practicing since 40 years. After the incident, we have all joined together. We have all joined together and formed a front known as Secular Advocates Front, only with the intention that what has happened on the 11th of this month, that is between the jurisdictions of DJ Halli, KG Halli and KB Sandra, the unfortunate this thing which was the result was due to the fallout of an episode which was come out in a Facebook, which was derogatory to the Muslim community, making baseless and blasphemy statements, degrading the Sallallahu Alaihi Wasallam, which resulted in the skirmishes within the community. The community people approached the police, informing them about the incident, but the police at the spur of the moment have not acted, and they made them wait for hours together, which became a moment of unrest, which resulted in the after effects of all those things. This would have been avoided 100%. We as a Secular Advocates Front condemn the incident, what has happened, and we also condemn the Facebook post which was posted by the person intentionally only to provoke the particular community. This has been happening throughout India only with an intention to provoke the community and see that something wrong is done by the community people, which has been happening oftenly. Now what, as a result of this, loss of life and property have been in damage, and it is a result of this inaction of the police. Now we request that the community people as well as the public to don't take law in their own hands. Please be peaceful and cooperate with the police to see that the culprits are apprehended, the innocents are left free, and with that intention we have been moving the courts also. If FIRs are filed so that the innocent persons are released, the guilty should be punished. We will support the police also in the event if they are found that certain persons who are involved are guilty. We will definitely cooperate with the police also, so that the guilty should not go unpunished, whereas the innocent should not be punished. He should not be harassed. Most of the people are daily bread earners who have been, the entire family is dependent on them. Now they are suffering for want of food and energy. After all, since about 6 months, the people are suffering from COVID-19 pandemic, and this is added to that. It is like a salt rubbing on the injury, which is the after effect of all these things. The community will have to bear a very heavy penalty for that, and with that intention, we have formed this group to see that all the community people, we should guide them so that we should not entangled into in such situations, and we should not get provoked with such false and baseless allegations made against Huzur. They fully are aware that these things will hurt the community. They are intentionally doing it to provoke the community and see that there are unrest in the period of COVID. With all these few words, we are with the intention of helping the community. We have come forward and see that we will take the community on their correct path and see that the innocents are released at the earliest. Thank you very much. Minullah Abbasi, practicing since 20 years. बेंगलुरु में हर फील्ड में प्रैक्टिस करता हूँ मैं, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, सब कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। ये जो 11 तारीख को जो हादसा हुआ, ये हादसा किसकी बिना पर हुआ वो ना मीडिया बोल रही है ना कोई बोल रही है। ये हादसा होने का रीज़न था, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर वो कुछ ना डालता तो कोई हादसा ना होता, कोई गलाटा ना होता, कुछ भी ना होता। लेकिन मीडिया वाले लोग जो हैं उस बात को छोड़ के जो उसके बाद जो हुआ
उसके बाद भी जो है वो भी नहीं होना चाहिए था, वो भी गलत है। क्योंकि कानून है, कानून हिंदुस्तान के अंदर कानून है, कानून के साथ हम चलेंगे तो हमको हेल्प होगा। लेकिन कानून का हमारे लोगों ने क्या किया, कुछ गलत कर दिया और उधर तोड़ फोड़ बगैर उसका कुछ ना सोचे तोड़ फोड़ करके पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ के आगजनी की और वहाँ के व्हीकल्स को आगजनी की और लोगों के व्हीकल को आगजनी की। ये सब गलत है। ये सभी क्या है, इस्लाम जो है ये सभी नहीं सिखाता। इस्लाम जो है हमारा मज़हब जो है बहुत पाक और साफ़ और शफाफ मज़हब है। इस मज़हब में ये सभी चीज़ें नहीं आते। लेकिन कुछ लोगों की शरारत की वजह से ये सब इतना गलत हो गया कि सारे मीडिया वाले मुसलमानों को बदनाम करने लग गए। ये ऐसा कुछ नहीं है। कुछ हर मज़हब में कुछ गलत लोग रहते हैं। वो गलत लोगों का इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारे लोगों को इसका पूरा इनको पूरा डाल दें, वैसा नहीं है। कुछ चंद लोगों ने किया, इसलिए हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है कि जो भी बेकसूर लोग हैं, अब क्या है पुलिस वाले लोग घर में घुसकर पंप उन वाले नहीं है, उनको पकड़ के लेके जा रहे हैं। उनको कुछ मालूम ही नहीं गलाटे के बारे में, घर को घुस रहे हैं, उनको पकड़ के जा रहे हैं और कहाँ रखे हैं, किधर पे रखे हैं, किसी को मालूम नहीं है। आज तक जितने लोगों को पकड़ा है आज तक किसी को मालूम नहीं कि इनको कहाँ रखे हैं, उनके फैमिली को इंटीमेशन दिया है क्या, कुछ भी नहीं है। कि कानून क्या बोलता है कि विदिन 24 जिसको भी आप अरेस्ट कर रहे हैं तो उनकी फैमिली वालों को बोलना, दिस इज़ द लॉ। अब कानून वाले पुलिस वाले किसी को नहीं बोल रहे हैं कि इनको कब प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन से केस में प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी को ना उनके फैमिली मेम्बर्स को मालूम है, ना एडवोकेट्स को मालूम है, किसी को मालूम नहीं है। अब में एडवोकेट्स की कोई अप्रोच हुई क्या, टीम आपकी अप्रोच हुई थी लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे हैं। अब हमें यहाँ ऑलरेडी 3 बजे से यहाँ पे जपले खड़े हैं कि आज प्रोड्यूस करते बोल के, कल भी इंतजार किया, आज भी इंतजार किया कि प्रोड्यूस कर रहे हैं बोल के, ना वो प्रोड्यूस भी नहीं किया, क्या नहीं किया। तो इतने बजे तक जबकि हम वापस जा रहे हैं। पुलिस वाले क्यों ऐसा करते हैं? अगर उन्होंने गलती किया है तो लाके प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करने के बाद हम इंफॉर्मेशन देना। और रात में 12 बजे 2 बजे प्रोड्यूस करते हैं, हमको मालूम नहीं होता कहाँ प्रोड्यूस करती हैं, किधर प्रोड्यूस करती हैं, मालूम नहीं। इसलिए हम इस मीडिया के ज़रिए से बोल रहे हैं कि पुलिस लोगों को कि विदाउट फेल ये कहाँ प्रोड्यूस कर रही, कब प्रोड्यूस कर रही, हमारे को इंफॉर्मेशन देना। क्योंकि हमें यहाँ हमें वकला ही कानूनी कार्रवाई से हमें उनको उसका जो भी केस है उसका हमें हैंडल करते हैं। शुक्रिया। पुलिस की तरफ से जो ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है, इस खुसूस में कोई क्या कानून है, कानून आप लोगों को क्या है, कानून ऑलरेडी है। विदिन 24 आवर्स they has to produce before the court and intimate to the family members or their advocate. Both things they are not doing. अगर नहीं हो रहा है तो आपकी नहीं हो रहा तो वी आर क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट में हमें एप्लीकेशन डाल के इंटीमेशन नहीं दिया है। दे वायलेटेड द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस और बीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के उसमें ऑलरेडी रूलिंग में गाइडेंस दिया है कि फैमिली मेम्बर्स को या किसी एडवोकेट अगर है उनको तो इंटीमेशन देना, या कुछ भी नहीं कर रहा है। अरेस्ट मेमो दे के अरेस्ट मेमो में डिटेल दिखाना और कोर्ट में बोलना कि किसको इंटीमेशन दिया है, कौन लोग इसके किसको इंटीमेशन। ये भी हमने मेमोरेंडम हमने पूरा तैयार कर लिया है। हमें कमिश्नर ऑफ पुलिस बेंगलुरु को मिलेंगे और डीजीपी को मिलेंगे और यहाँ के होम मिनिस्टर हैं उनको भी जाके हम मेमोरेंडम देंगे। और जो नवीन है उसके खिलाफ सारे बेंगलुरु के अंदर जितने भी लोग हैं वो उसके खिलाफ कंप्लेंट देंगे। ये पहला हमारा इंसिडेंट के विदाउट एनी रीज़न मुसलमानों के खिलाफ कोई एक इशू बना के पूरा मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये कोई इनकी एक साजिश है। इस साजिश को हम पर्दाफाश करेंगे इंशाल्लाह। कल जो पिछले इतवार को जो सानिया हुआ 11 तारीख को, ये नहायत अफसोसनाक और दर्दनाक है। तो इस दौर में इस वक्त में जो है हमको जो है सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए था। और मैं सबसे पहले तमाम मेरे कौम से नौजवानों को अमन की अपील करता हूँ। अब जहाँ तक जो अहबाब अरेस्ट होकर हैं, यानी जिनको पुलिस ने डिटेन किया है, गिरफ़्तार किया हुआ है, तकरीबन हमारी इत्तला के मुताबिक तकरीबन 200 से 250 अफराद को गिरफ़्तार किया है। पिछले 2 दिन से हम लोग जो है उनकी कहाँ किस कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, तो जुडिशल तौर के ऊपर जो है 11वां और 10वां और 11वां कोर्ट जो है 11वां कोर्ट इस केस में आता है। तो 11वें कोर्ट से हमने तकरीबन 10-12 FIRs हमने निकाले, मगर किसी को अब तक प्रोड्यूस नहीं किया गया। कल से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जब प्रोड्यूस करेंगे तो हम लोग उनकी वकालत डालेंगे या बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे। अब जैसा कि हमने हेल्पलाइन दिया है तो हमको सैकड़ों कॉल्स आ रहे हैं, बहुत बेचैन हैं। मैं आपके चैनल के थ्रू से मैं अपील करता हूं कि भाई सब्र से काम लें। अब हमको ऐसे फ़ोन आ रहे हैं कि कब आएंगे, कब छोड़ेंगे।
आज छोड़ डाल देंगे, आप छोड़ डाल देंगे, ऐसा सवाल आते हैं। ये अभी इतना जल्दी आसान होने का काम नहीं है। मामले को सियासी रंग देने की भी कोशिशें हो रही हैं, तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना, और फिर इसे आप कैसे टैकल करेंगे? इसी देखो, मुसलमानों को जो है हर वक्त यही खिलौना बना रहे हम, और हम लोग सियासत दोनों के हाथों में हम खेल रहे हैं। यहाँ पे जो है सबसे बड़ी चीज़ जो है इल्म की कमी है, तालीम की कमी है, सिर्फ जोश है, होश नहीं है। और अफवाहों के ऊपर बहुत जल्दी हम लोग कान धर देते हैं कि वहाँ होगा कहते रहे, तो इसके ऊपर चलो नारे तक भी। ये क्या है? ये खुद ये जो ये RSS की और ये जो तंजीमें हैं, ये चाहते ही यही हैं कि मुसलमान को कुछ छेड़े जाए तो कुछ गलत काम करे और इसको जो है प्रॉड है। अब जैसा पादरनपुरा का जो वाक़या हुआ था, उस वाक़े को भी मीडिया ने किस तरह से उछाल के मुसलमानों को बदनाम किए थे। अब इसी तरह यहाँ भी ऐसा ही करा है। और ख़ासतौर पर चंद TV चैनल्स जो हैं, जो है अगर कोई जो गलती कर रहा है वो गलती, चाहे वो मुसलमान करे, हिंदू करे, जो भी करे, गलती है। जो गलती करता है उसको सज़ा दीजिए। अब यहाँ गलती करने वाला जो है वो हाथ को नहीं मिलता। जिसने गलती की है उसे मालूम कि उसने गलती किया है, वो छुप जाएगा, वो नहीं आएगा। अभी पुलिस को जो है आला ऑफिसरों को जवाब देना है। वो क्या करिए, ये क्या किया तुम, चलो कौन मिल रहा है उसके हाथ को पकड़ो, रोड में कर्फ्यू है, रोड में आ रहा है, पकड़ो उसको, थाने को लेकर चलो। तो इस तरीक़े से बहुत से जो इनोसेंट्स हैं, जिन लोगों का इस हादसे से इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ऐसे लोग जो आराम से घर में बैठे हैं, इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया। तो आज के दौर में मैं मेरी कौम से अपील करता हूँ कि वो अपने आप को अकेला मत समझे, अपने आप को यतीम ना समझे। हम लोग साथ हैं, हम बग़ैर मुआवजे के तमाम हमारी एक आवाज़ के ऊपर आप अभी थोड़ा देर पहुँचे। आप अगर आप एक 10-15 मिनट पहले पहुँच जाते तो तकरीबन 60 से 70 एडवोकेट्स यहाँ पे थे। हर आदमी वॉलंटरी आ रहा है। एक तो हमारा सेकुलर एडवोकेट फ्रंट के अरकान तकरीबन हम 12-15 अरकान तो यहाँ ही। तो हमारे सपोर्ट में जो है, हमारे फ्रंट के सपोर्ट में जो है तकरीबन 50-60 एडवोकेट, दूसरे एडवोकेट्स भी यहाँ पे हाज़िर हुए कि भाई कि हमको भी खिदमत का मौका दिए। तो जहाँ तक कि जो अफराद गिरफ़्तार हुए हैं, मैं उनके ख़ानदानों को अपील करता हूँ कि वो मत डरें, हम आराम से सिर्फ दुआ करें। वक्त लगेगा, उनको छुड़ाने की ज़िम्मेदारी जो है हम लोगों की है। हम बग़ैर मुआवजे के, बग़ैर एक पैसा लिए हुए उन लोगों को छुड़ाने की कोशिश करें। और दूसरी अपील मैंने की थी मालदार लोगों से कि हम लोग जो है कोर्ट की कार्रवाई कर सकते हैं, ज़मानत की कार्रवाई हम लोग नहीं कर सकते। ज़मानत के इधर वी हैव टू डिपॉजिट कैश सिक्योरिटी, जो भी कोर्ट से हो गए, या फिर ज़मानत को कुछ जायदाद की प्रॉपर्टी का अवधान। तो जो साहिब हैसियत अभी वो लोग सामने आकर इन लोगों की ज़मानत के खड़े, तो जल्द से जल्द ये लोगों की रिहाई मुमकिन हो सकती है। अभी कोर्ट में प्रोड्यूस करने की बात हुई थी, जी, प्रोड्यूस हुआ है या नहीं? नहीं हुए, अभी तक नहीं हुए। हमारी इत्तला के मुताबिक जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मजिस्ट्रेट्स को रिमांड करके दोबारा कस्टडी ले रहे हैं। अब उन लोगों को पता चल गया कि भाई एडवोकेट्स लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं। अब वो जैसे ही एप्लीकेशन डालेंगे या रिमांड के लिए पूछेंगे तो हम लोग उसका मुखालिफत करेंगे। तो इसलिए वो जो लोग हैं वो अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड करके जो है वो अपने तरीके से कुछ करें। अब कर्फ्यू की वजह से हम लोग वहाँ पे भी नहीं जा सक रहे, हम लोग स्टेशन को नहीं जा सक रहे। अब इंशाल्लाह कर्फ्यू के बावजूद भी कल इंशाल्लाह हमारा होम मिनिस्टर से, कमिश्नर से, DG से मिलने का इरादा है। तो हम उन लोगों से गुजारिश करेंगे कि हम लोगों को जो गिरफ़्तार हो चुके हैं उनके फैमिली मेम्बर्स को मिलने के दिया जाए, और हम लोगों को भी उन लोगों से मिलने की इजाज़त दी जाए। इस सिलसिले में हम लोग कल मिल रहे हैं। कल आज भी हम मिलना चाहते थे, अपॉइंटमेंट चाहा हमने कमिश्नर से, तो हम लोग यहाँ पे फंस गए थे। तो कल इंशाल्लाह नमाज जुमा के बाद जो है कमिश्नर के साथ हमारी मुलाकात होगी, होम मिनिस्टर से मुलाकात होगी, चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकात होगी। और हम लोग जो है आपके ज़रिए से जिन अफराद की मौत हो चुके, जो शहीद हो चुके हैं, जो 3 शहदा जो कल हुए हैं, उनको जो है गवर्नमेंट से कम्पनसेशन का हम पुरजोर मुतालिबा करते हैं कि जो भी जितने भी अफराद की मौत हो चुकी है उन लोगों को जो है गवर्नमेंट से कम्पनसेशन दिया है। बिकॉज इट इज़ दी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पब्लिक। तो इसके लिए भी जो है हम लोग पुरजोर मुतालिबा करते हैं। अब जब हम चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे तो हम इसका मुआवजे का भी मुतालिबा हम लोग करेंगे। जिन जिन बच्चों को गिरफ़्तार किया गया है, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका को आप एक टेलीग्राम दे दीजिए कि पुलिस ने हमारे बच्चे को, ये नाम के बच्चे को अरेस्ट करके लेके गया है बोल के, तो दैट टेलीग्राम विल बी ट्रीटेड एज ए हेबस कॉर्पस। तो ये वकील हजरात के ज़रिए भी किया जा सकता है, वकील हजरत के भी किया जा सकता है, मगर बेहतर है आराम तरीक़ा मैं बता रहा हूँ ना, आपको वकील के पास आने की ज़रूरत नहीं है।
जस्ट एक टेलीग्राम दीजिए आप टू दी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका बेंगलोर, my son, my brother or my cousin, whoever it may be, he has been taken away by the police on such and such day at such and such time. बस इतना इन्फॉर्मेशन आप हाई कोर्ट को भेजिए, द टेलीग्राम विल बी कन्वर्टेड एज ए हेबस जिन कॉर्पस। महलों में इस तरह के हादिसात हुए हैं जी। वहाँ का तबका तकरीबन पसमानदा तबका और गैर तालीम याफ्ता ज्यादा था। जी जी, तो मुमकिन है ये मामले को भी वो हैंडल नहीं कर सकेंगे कोर्ट तक टेलीग्राम पहुंचाने के सिलसिले में। सिंपल है ना, मुमकिन है इस खुसूस में आपकी रहनुमाई की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हम तो तैयार आप हैं, हम लोग सिलसिले में भी पहल कर सकते हम हैं। तैयार हैं, हम कर रहे हैं। हमारे नाजरीन में से अगर हम करेंगे तो हमको वकालत चाहिए, उनके फैमिली उनके एफिडेविट चाहिए। अगर लीगल प्रोसीजर गए तो बहुत लंबा होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। रहनुमाई के लिए आप गाइड हाँ, वो गाइड कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ एक टेलीग्राम दीजिए बस, मेरे बच्चे को इतने वक्त के ऊपर गिरफ्तार करके पुलिस वाले, कोसी पुलिस, डीजीएलडी पुलिस बोल के चीफ जस्टिस को कंप्लेंट दीजिए, वो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, हेबस कॉर्पस हो जाएगा और पुलिस जवाबदेह हो जाएगी। इस मामले अगर वो बच्चे को पुलिस वाले केस में इन्वॉल्व करें तो फ़ौरन उनको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा और एफिडेविट डालना पड़ेगा कि हाँ हमने इस बंदे को अरेस्ट किया है। दे हैव टू गिव द रिप्लाई। इस मामले में क्या जी। आपकी एसोसिएशन ने कोई कांटेक्ट नंबर इशू किया है? हाँ, हमने कॉन्टैक्ट इशू किया है। हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे वो नंबर क्या है। हमने कॉन्टैक्ट नंबर एडवोकेट्स के नामों के साथ कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं और इतने फ़ोन आ रहे हैं कि हम लोग जो है उन लोगों को तसल्ली भी नहीं दे सके, हमको काम करने भी नहीं, इतने फ़ोन आ रहे हैं। ये नंबर अब ऐसे सवाल आ रहे हैं, अब जो सवाल आ रहे हैं हमको, कब छुड़ा रही, कब आ रही हैं तुम्हें, कब हमारे बच्चे को बुला गई, तो अब हम क्या जवाब दें बोलो। तो नाजरीन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इन नंबर पर अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो मुमकिन है आपको तसल्ली बख्श जवाब और आगे की कार्रवाई का मज़ीद सिलसिला जो है वो आपको पता चल सकता है। अस्सलाम वालेकुम।